Hello students, in this video we will discuss about some questions of exercise 12.3. We have done question number 1 to question number 11 in my previous video, and now we are going to discuss about question number 12. In the figure, OACB is the quadrant of the circle. This is the quadrant of the circle with center O and radius 3.5 centimeter. The radius of this quadrant is 3.5 centimeter, means OA is equal to 3.5 as well as OB is equal to 3.5 centimeter. If OD is equal to 2 centimeter, यहाँ से लेकर यहाँ तक OD is equal to 2 centimeter. This OA is equal to 3.5 centimeter and OD is equal to 2 centimeter. Find the area of the quadrant OACB. So the students, the area of the quadrant formula is theta upon 360 degree into pi r square, which is equal to 22 upon 7. थीटा यहाँ से पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7. थीटा इज 90 डिग्री फॉर दिस quadrant. 90 degree upon 360 degree into pi r square. R means 3.5 is the radius, 3.5 is the radius, r square. So after calculating, I have got here 77 upon 8 centimeter square, which is the area of the quadrant of the circle. Also it is asked in the question that find the shaded region. Shaded region का area find करना है. So this is the shaded region. How will you find this area? Subtract the area ऑफ द क्वाड्रेंट एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल. क्वाड्रेंट का एरिया आपने यहाँ निकाला, आप सिर्फ ट्राइंगल का एरिया उसमें से माइनस कर दो. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल. एंड हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल? इट इज वेरी इजी. 1/2 into base into height. This formula you will apply here. So in second part, OD is equal to 2 centimeter. Here OD is given in the question, that is equal to 2 centimeter, and OB is equal to 3.5 centimeter. Means base is 3.5 centimeter and height is 2 centimeter. So 1/2 into base into height is equal to 3.5 centimeter square. Now area of the shaded region, area of the quadrant minus area of the triangle OBD. जैसे कि मैंने आपको बताया कि quadrant के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, आपको शेडेड रीजन का एरिया मिलेगा. सो इट इज इक्वल टू कैलकुलेट करते हैं इसको. सॉरी, दिस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो फर्स्ट एरिया, that is area of the quadrant is 77 upon 8. 77 upon 8 minus 3.5 is the area of the triangle. So 35 upon 10, which is equal to 77 upon 8. 5 से इसकी कटिंग की, 5 2 जा 5 7 जा 35. So minus 7 upon 2. 8 is the LCM. So after calculating, I have got here 49 upon 8 centimeter square is the area of the shaded region, this area. So this is about question number 12. Now question number 13. In the figure, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. This is the figure, students. This is I have made here. I think you are not able to see this figure. I am drawing it again. This is the square OABC, and this point is Q, and last this point is P. Clear? You have to find this shaded area. How will you find this shaded area? Information क्या है क्वेश्चन में? In the given figure, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. एक क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब कर दिया. If OA is equal to 20 centimeter, this OA from here to here, it is equal to 20 centimeter. If this is a square, it means this OC is also equal to 20 centimeter. Find the area of the shaded region. For area of the shaded region, you will subtract the area of the quadrant and area of the square. Area of the square means side into side, 20 into 20, that is 400. But how will you find the area of the quadrant? For this, you have to find the radius of the quadrant. How will you find? Students, OB is the radius of the quadrant.
OB is also the diagonal of the square, and you very well know that diagonal of the square is equal to side of the square under root 2. In this way you can find this diagonal. Clear? आप क्या करोगे, क्योंकि ये डायगोनल है इसलिए डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड अंडर रूट 2. अब साइड कितनी है 20, इसलिए डायगोनल कितना आएगा 20 अंडर रूट 2, जो कि क्वाड्रेंट का क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा. फिर आप क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस करोगे तो आपको शेडेड एरिया मिलेगा. अब यहाँ पर given the square OABC, its side is 20 centimeter. Area of the square 20 into 20, that is equal to 400 centimeter square. Diagonal of the square is equal to side of the square under root 2, that is equal to under root 2, side of the square is 20, which is equal to 20 under root 2 centimeter. And radius of the quadrant of the circle, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो डायगोनल है यही डायगोनल क्वाड्रेंट का रेडियस बनेगा. सो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 2. नाउ एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट वी हैव टू फाइंड. The formula to find the area of the quadrant is theta upon 360 degree into pi r square, and you know that in quadrant theta is 90 degree. So I have taken here 90 degree, 90 upon 360 degree into pi into r square. Clear? So after calculating I have got here 628 centimeter square. This is the area of the quadrant and this is the area of the square, 400 centimeter square. इन दोनों एरिया को जब मैंने माइनस किया 628 क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस किया, देन आई लेफ्ट विद दिस आंसर 228 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 14 is already done in my previous video, and now I am going to discuss about question number 15. In the given figure, ABC is the quadrant of the circle. Is the quadrant of the circle of radius 14 centimeter. And a semicircle is drawn with BC as the diameter. BC को डायामीटर मान के आपने ये वाला सेमी सर्कल ड्रॉ किया. ठीक है. सेमी सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. अब ये शेडेड रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है. आप क्या करोगे, आप सेमी सर्कुलर रीजन में से इस सेगमेंट का एरिया जब माइनस करोगे तो आपको इसका शेडेड एरिया मिलेगा. क्लियर? सो अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है, रेडियस इज 14 सेंटीमीटर. ये जो क्वाड्रेंट है इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, मीन्स दिस साइड इज 14 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज ऑल्सो 14 सेंटीमीटर. क्लियर? सो रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर. आपने यहाँ पर कंपास रखा, इस तरह से एक आर्क ड्रॉ किया, ये वाला आर्क आपने ड्रॉ किया, इसलिए इसका रेडियस क्या होगा, ये वाला इसका रेडियस होगा. क्लियर? सो रेडियस के अकॉर्डिंग आपके पास थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, बिकॉज इट इज द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, देयरफॉर द एंगल इज 90 डिग्री. ऑलवेज द एंगल ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल इज 90 डिग्री. सो 90 अपॉन 360 डिग्री 22 अपॉन 7, 14 into 14, which is equal to, अब इसकी मैंने कटिंग कर दी, 19 4 जा 7 2 जा 14, तो 2 2 जा 4, 2 11 जा, so 11 into 14 is equal to 154 centimeter square. नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, पहले आपको इस सेगमेंट का फाइंड करना है, उसके बाद आपको सेमी सर्कुलर रीजन में से सेगमेंट का माइनस करना है. सो सेगमेंट का एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, आप क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करोगे तो आपको सेगमेंट का एरिया मिलेगा. क्लियर? सो उसके लिए हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. व्हाट इज बेस? AB को बेस ले लो या फिर AC को बेस ले लो, देर इज नो डिफरेंस. सो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज बेस एंड हाइट बोथ आर इक्वल, 14 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर. सो हेयर बेस इज 14 सेंटीमीटर, हाइट इज 14 सेंटीमीटर, 2 7s are 14 and 14 7s are 98 centimeter square. Now area of the region marked as 1. ये जो एरिया है जिसको मैंने रेड पेन से शेड कर दिया, अब इसका एरिया कैसे आएगा, क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करने पर. तो जो 1 रीजन है वो हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, दैट इज इक्वल टू, हमने क्वाड्रेंट का एरिया कितना फाइंड किया था 154, एरिया ऑफ द ट्राइंगल वाज 98. So after subtracting, I have got here 56 centimeter square. This is the area of the segment. आपकी फिगर
यहाँ पर इस तरह से फिगर थी, क्लियर। ये सेगमेंट था, इस सेगमेंट का एरिया मैंने माइनस किया, मैंने क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, मुझे इस सेगमेंट का एरिया मिला। अब मुझे इस सेमी सर्कुलर रीजन का एरिया फाइंड करना है और उसमें से ये रेड पेन वाला जो मैंने शेड किया एरिया, इसको माइनस करना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑन डायमीटर BC, ये जो आपका BC है, इसके ऊपर जो सेमी सर्कल बना उसका एरिया कैसे आएगा। अब देखो बच्चों, अब इसमें R 1/2 BC होगा, क्योंकि BC इज द डायमीटर ऑफ दिस, BC is the diameter of this semi circle. So BC का हाफ करेंगे तो रेडियस मिलेगा, BC का हाफ। अब देखो BC हमें कैसे मिलेगा, सबसे पहले हम BC फाइंड करते हैं। सो इस फिगर में BC का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज था, सो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। सो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 196 प्लस 196, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 196, BC square is equal to 2 6 are 12, 1 carry, 2 9 are 18 plus 1 19, 1 carry, 2 1 are 2 plus 1 392। स्क्वायर को दूसरी साइड लेकर जाओ, अंडर रूट। सो BC फ्रॉम हेयर इज इक्वल टू BC, अब BC का अंडर रूट आप फाइंड करोगे, इट इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 2, क्लियर। BC का अंडर रूट फाइंड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 7 अंडर रूट 2। सो the radius of the semicircular region is 7 under root 2. In this way you can find. One more method is to find the radius of the square, that is this side BC. अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम से यूज रेडियस नहीं फाइंड करना, then you can use side under root 2. This formula can be used only when this and this side are equal. जब ये दोनों साइड इक्वल होंगे तभी आप साइड अंडर रूट 2 का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आएगा, 14 अंडर रूट 2, दिस इज द डायमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड रेडियस क्या आएगा यहाँ से, 7 अंडर रूट 2, क्योंकि आप डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे, रेडियस इज 7 अंडर रूट 2। सो देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड BC. वन मेथड इज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एंड वन मेथड इज अकॉर्डिंग टू साइड अंडर रूट 2। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। सो आई हैव calculated here the radius is 7 under root 2 centimeter square. Now area of the semicircle on the diameter BC क्या आएगा, 1/2 into pi r square. This is the area to find. Pi r square upon 2 is the area of the semicircular region. So 1/2 into pi into r square, which is equal to 154 centimeter square. Now area of the shaded region, this blue pen से जो मैंने शेड किया हुआ है, तो ये कैसे आएगा, सेमी सर्कुलर रीजन में से अगर आप सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो, सो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 56 इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 15. Now question number 16. Calculate the area of the designed region in the figure common between the two quadrants of the circle of the radius 8 centimeter each. हमें ये फाइंड करना है एरिया, डिजाइन रीजन इज दिस and the side of the square is 8 centimeter. If side of the square is 8 centimeter, it means radius of the square is also 8 centimeters. So side of the square is 8 centimeter, therefore area of the square is equal to 8 into 8, 64 centimeter square. Radius of the quadrant is also equal to 8 centimeters, 8 centimeter, because जब आप यहाँ पर कंपस रखोगे, यहाँ पर कंपस रखोगे और आर्क ड्रॉ करोगे तो उसका रेडियस कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर आएगा, क्लियर। सो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट मैंने निकाला यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, दैट इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। जैसे भी आपको इजी है याद करना उस तरह से आप याद कर सकते हो। ये मैंने सारी वैल्यूज पुट करने के बाद 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास आंसर आया एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट का। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर लेफ्ट ऑन सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ द वन क्वाड्रेंट। जब मैंने एक क्वाड्रेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट किया स्क्वायर के एरिया से, मेरे पास क्या था, स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर के एरिया में से एक क्वाड्रेंट का सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्लियर। तो मुझे ये वाला एरिया बचेगा,
ये वाला एरिया बचेगा. सो एरिया ऑफ द स्क्वायर लेफ्ट ऑन सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. इस स्क्वायर के एरिया में से ये पूरा एरिया माइनस कर दो. सो 64 माइनस 352 अपॉन 7. 64 क्योंकि साइड 8 थी इसलिए साइड into side is the area of the square, that is 64 minus 352 upon 7 is the area of the quadrant. इन दोनों को माइनस किया, माइनस करने के बाद 96 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट फॉर्म्ड ऑन ऑपोजिट वर्टेक्स. अब मेरे पास इस तरह पहले ये क्वाड्रेंट ऐसे था, अब ये क्वाड्रेंट ऐसे हो गया, तो मैंने इस एरिया को भी स्क्वायर के एरिया से माइनस किया. मुझे क्या मिला? सिमिलरली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट वर्टेक्स. अब ये ऑपोजिट वर्टेक्स पर जो एरिया था वो मैंने फाइंड किया. क्वाड्रेंट का एरिया 352 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ टोटल एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. अब शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे आएगा स्टूडेंट्स? जब मैंने पहले ये वाला क्वाड्रेंट लिया था और क्वाड्रेंट का एरिया मैंने स्क्वायर से माइनस किया था, तो मेरे पास जब मैंने स्क्वायर के नाउ टोटल एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन कैसे फाइंड करेंगे? देखो क्वाड्रेंट का एरिया आपके पास आ गया. आप पहले ये वाला एरिया निकाल के, इतना एरिया आपने निकाला था और उसको स्क्वायर के एरिया में से माइनस किया था, तो आपके पास ये एरिया आया था. क्लियर? अब आप क्या करोगे? आप इस साइड वाला एरिया निकालोगे क्वाड्रेंट का एरिया, और जो एरिया ऑफ द स्क्वायर लेफ्ट है उसको, अब देखो ये वाला काउंट हो गया 2 बार. ठीक है, सो आपको क्या करना है? माइनस करना है. सो टोटल एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर लेफ्ट, विच इज इक्वल टू 352 अपॉन 7 माइनस 96 अपॉन 7 इज इक्वल टू 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16. यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय अनदर मेथड ऑल्सो. आई एम डिस्कसिंग इट विद यू. The another method to find the area of this designed portion is that, suppose I have drawn this line here. Now if you see this figure, then you will find that if you see this figure, then you will find that this area 1, this area is the segment of this quadrant. Clearly? Similarly, this second portion is the segment of this quadrant. So what you have to do, you have to find the area of the one segment and multiply it with 2. You will find the area of the both segments. Clear? दोनों सेगमेंट को, एक सेगमेंट आपके पास इस तरह से आएगा, दूसरा सेगमेंट आपके पास इस तरह से आएगा, और दोनों सेगमेंट के एरिया को जब आप कंबाइन करोगे तो वो आपको डिजाइन्ड पोर्शन का एरिया मिलेगा. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. अब क्या करोगे आप? सेक्टर के एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करोगे. एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. क्लियर? सो ये क्या आएगा? एरिया ऑफ वन सेगमेंट. एरिया ऑफ वन सेगमेंट. क्लियर? वन सेगमेंट मीन्स दिस इज द वन सेगमेंट एंड दिस इज द सेकेंड सेगमेंट. इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, देन एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सेगमेंट, दोनों का एरिया आपको साथ में ही मिल जाएगा. सो 2 इंटू एरिया ऑफ द सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ पर ट्राइंगल आएगा. सो 1 अपॉन 2 इंटू बेस इंटू हाइट. आपके पास बेस कितना है? 8 सेंटीमीटर. हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर. यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ करी थी, तो आपके पास ये क्या मिल गया था? इसकी ये क्या बन गई थी? फिगर ट्राइंगल बन गई थी. सो 8 सेंटीमीटर इज द बेस, 8 सेंटीमीटर इज द हाइट, बिकॉज इट इज स्क्वायर. सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा इज 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू you can use here the value 3.14 or 22 upon 7 you can also use into r. R means 8 into 8 minus 1 upon 2 into 8 into 8.
Clear? So 8 is common, that is 64 is common. So I am taking here 64 common. 91s are 94s are. Clear? 2 2s are 4, 2 11s are. So 11 upon 7 2s are 14 minus 8 8s are तो मैंने common निकाला था. Here 1 upon 2. Make the denominator same, multiply by 7, numerator and denominator. You will get here 2 4s are 8, 2 6 are 12, and 11 minus 7 is equal to 4 upon 14. So 14 2 के साथ डिवाइड करेंगे. 2 2s are 4, 2 7s are 14. So आपके पास यहाँ पर क्या आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 2 8s are 16, 1 कैरी, 2 2s are 4 plus 1 5, 2 1s are 2, 256 upon 7 centimeter square is the answer. So students, if previous method you are not able to understand, then you can understand this question by this method also. So this is the easiest method to solve this question number 16.